Hello everyone. So another set. This set is on games and tournament, and I hope you guys are following other video series of RC and DILR की तो चल ही रही है. Along with that, we are also uploading few concept videos. जैसे अभी हमने मैजिक स्क्वायर का वीडियो अपलोड किया था 3x3 का सेट और उससे रिलेटेड एक DILR का सेट भी कमिंग वीक में अपलोड करेंगे. तो पहले वो मैजिक स्क्वायर वाले सेट को प्लीज देख लीजिए because that is something which is really important. And then once that DILR set on that particular topic or concept comes, you can easily solve that. Let's see this set. तो ये सेट है गुजरात चेस एसोसिएशन periodically organizes a registration drive for the membership of the association in Ahmedabad. Following details are known about the registration drive of the association held in April 2019. A total of 10 non-registered players participated in the drive. Once a non-registered player finished playing his/her fourth chess match with any of the existing registered members of the organization, he/she became a registered member of the association. तो एक नॉन रजिस्टर्ड मेंबर को या ये जो 10 लोग नॉन रजिस्टर्ड मेंबर थे जिन्होंने स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना, if they want to become a registered member, they need to play 4 games with the registered member of the organization. And as soon as they play the 4th game, they become registered member. Third, the drive lasted for 3 weeks, and in each week, each player who had not become a registered player at the beginning of the week played at least one, but up to 4, including 4 chess matches with any of the existing registered members of the organizations. That means they have to play one match and they can maximum play up to 4 match. Because जैसे ही 4 मैच आप खेल लोगे आप रजिस्टर्ड प्लेयर हो जाओगे. नॉन रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी से आप हट जाते हो. So a non-registered player can play at least one, should play at least one, and can play up to 4 matches in each week. In all, 3 players each qualified for the membership of the association at the end of the first and the second week. तो फर्स्ट वीक में 3 प्लेयर क्वालिफाई हुए और सेकंड वीक में भी 3 प्लेयर क्वालिफाई हुए आउट ऑफ दीज 10 प्लेयर्स. The remaining 4 players qualified for the membership of the association at the end of the third week. तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं. So we have 1, so ये हमारा प्लेयर हो गया, ये वीक 1, ये वीक 2 और ये वीक 3. ठीक है. तो ये कह रहा है कि हर वीक में, पहले वीक में और सेकंड वीक में 3 प्लेयर क्वालिफाई हुए. यानी कि पहले वीक में किन्हीं 3 प्लेयर ने तो 4 मैच खेले ही होंगे. तो पहले 3 को हम 4 मैच खिला देते हैं. और क्या क्लूज दिए हुए? The number of chess matches played in the first and the second weeks were 25 and 11 respectively. तो फर्स्ट वीक में 25 मैच हुए, सेकंड वीक में 11 मैच हुए. Only one player played exactly 3 chess matches in the first and the second week. तो मान लेते हैं 4th प्लेयर ने 3 मैच खेले थे वीक 1 में, और वीक 2 में भी कोई होगा जिसने 3 मैच खेले होंगे. Exactly one player who played 2 matches in the first week became registered member of the association at the end of the second week. एक प्लेयर ऐसा था जिसने 2 मैच खेले थे, तो फिफ्थ वाले को 2 मैच खिला देते हैं. कितना हो गया हमारे पास? 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15 + 2 17, और हमारे पास 25 था. तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचता है? 8 मैचेस बचते हैं. और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1 2 3 4 एंड 5. तो सबको एक एक तो देना ही देना है. तो सबको अगर एक एक दे दिया तो कितना बचा? 3 बचा. Now we cannot give 3 matches to any of the player because यहाँ पे लिखा हुआ है only one, point number 6,
only one player played exactly 3 chess matches in the first and the second week. और 4 तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 दे देंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और हमारे पास गिवन था कि in all 3 players each qualified for the membership of the association at the end of the first and the second week. तो वीक 1 में भी 3 मेंबर क्वालिफाई हुए और वीक 2 में भी 3 मेंबर क्वालिफाई हुए। तो वापस जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये हम एक एक करके किसी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया और इसको भी 2 कर दिया और इन दोनों को 1 1 कर दिया। So now if you add all of it you will get 25. 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 3 15 plus 2 17 plus 2 19 plus 2 21 plus 2 23 24 and 25। तो ये तो हमारा हो गया और ये 3 प्लेयर हमारे रजिस्टर्ड हो गए। अब वीक 2 में भी 3 प्लेयर को रजिस्टर्ड होना है और यहाँ पे गिवन है कि अब ये तो हमें पता ही है कि जो भी नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर होगा वो एटलीस्ट एक मैच तो खेलेगा ही खेलेगा। तो जैसे ही ये 4th वाला एक मैच खेलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड प्लेयर हो जाएगा फॉर वीक 2। तो ये रजिस्टर्ड प्लेयर हो गया। नाउ इट इज आल्सो गिवन एक ही प्लेयर है जिसने वीक 1 में और वीक 2 मतलब कोई एक प्लेयर है जिसने वीक 1 में 3 मैच खेले हैं और एक कोई और प्लेयर है जिसने वीक 2 में भी 3 मैच खेले हैं एज पर पॉइंट नंबर 6। तो अब हम किसको 3 मैच दे सकते हैं, इनको तो दे नहीं सकते क्योंकि जैसे 2 मिलेगा ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे एंड दिस डेटा इज फॉर द नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर्स। तो इसको हमने 3 मैच दे दिए और ये भी हमारा रजिस्टर्ड हो गया। सो वीक 2 के 2 प्लेयर हमें मिल गए जो रजिस्टर्ड हो गए, 4th और 9th। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 7th पॉइंट में अगर देखो तो एग्जैक्टली 1 प्लेयर हु प्लेड 2 मैचेस इन द फर्स्ट वीक बिकेम रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द एसोसिएशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। तो इन चारों में से कोई एक है जो रजिस्टर्ड मेंबर होता है, तो उसको हमने 2 मैच दे दिए, तो ये भी रजिस्टर्ड हो गया। तो जो वीक 2 के 3 प्लेयर चाहिए था जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो हमें मिल गए 4th 5th और 9th। मैचेस कितने हमने कवर कर लिए, 3 plus 2 5 plus 1 6। तो कितना बचा, 5 मैच बचे और लोग कितने हैं 1 2 3 and 4। इन 4 लोगों को हमें ये 5 मैचेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और कोई कंडीशन अगर है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट देम। सो 5th पॉइंट में तो सिर्फ ये था। 6th पॉइंट में ओनली 1 प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 3 चेस मैचेस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक। तो हम 3 किसी और को दे नहीं सकते हैं, अगर हम देंगे तो वैसे भी वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो हम वैसे भी नहीं दे सकते हैं। 7th में एग्जैक्टली 1 प्लेयर हु प्लेड 2 मैचेस इन द फर्स्ट वीक बिकेम रजिस्टर्ड मेंबर, ये भी हमने कवर कर लिया है। पिछले पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज गुड, पॉइंट नंबर 3 वी हैव डन, पॉइंट नंबर 4 इज ठीक है। तो अब हमको इन 5 लोगों को 5 मैचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही 2 मैच देंगे ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो इन तीनों को एक एक दे देते हैं। 3 मैच और खत्म हो गए, 2 मैच बचे, तो 2 मैचेस को दे देते हैं। एंड इन वीक 4 दे ऑल विल बिकम रजिस्टर्ड प्लेयर। तो ये एक मैच खेलेगा, ये एक मैच खेलेगा, ये एक मैच खेलेगा और ये भी एक मैच खेलेगा एंड दे ऑल विल बिकम रजिस्टर्ड मेंबर इन वीक 3। So now we can go to the questions. पहला क्वेश्चन है how many matches were played in the third week? Write 0 if your answer is cannot be determined. तो पहली बात तो है इस क्वेश्चन में कि we are interested in matches between registered and non-registered players. Registered players की बात नहीं हो रही है because this is the registration drive of the association. तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूजन है। दे शुड क्लियरली स्टेट दैट दे आर लुकिंग मैचेस बिटवीन रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर्स, अदरवाइज तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा। बट अगर हम रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड को कंसीडर करें तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड मोर मैचेस इन द सेकंड वीक देन इन द फर्स्ट वीक? तो सिर्फ और सिर्फ 9th वाला है और 10th वाला, ये 2 लोग हैं
जिन्होंने वीक 1 से ज्यादा मैच वीक 2 में खेले? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. Question number 3, how many players played exactly 2 matches in the second week? सेकेंड वीक में 2 मैच किसने किसने खेले हैं? कितने लोगों ने खेले हैं? एक इसने खेला है और 10th वाले ने खेला है, यानी कि 2 people. So answer will be C. And the last one, how many players played exactly 2 matches in the third week? So we do not have any player who played 2 matches in the third week. So the answer to this question is A, that is 0. So I think you all must be able to solve this set, और काफी easy set था. I'll keep it in between easy and medium, और थोड़ा easy से थोड़ा सा ऊपर और medium से थोड़ा सा नीचे. और मुझे लगता है कि सबने कर लिया होगा. प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मंडे से हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग दैट इवेंट. This is a call to all the students. If any one of you is interested in becoming part of that execution team, you can WhatsApp me on my number, and you can find my number by joining the Telegram group or Facebook group. Or please feel free to connect with me if you have any queries, any questions. And that's it, guys, for this particular set. Happy learning. Enjoy your day.